Hello children, welcome to our second chapter which is components of food and the video which is second part of the chapter. In first part we have seen the main components of food, various components of food and their function. In this video we will discuss about them in detail. So let's take a quick view on the main components of our food which we have seen earlier, which are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals, and water and dietary fiber, and they are having different functions as well. Now we will discuss about carbohydrate in detail. Okay, so let's start the chapter. Here the question is, what are carbohydrates? Carbohydrates are the compound made of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, what are carbohydrates? So carbohydrates are the compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. Now the question is, what are compounds? So compounds are the mixture of two or more different components which are chemically combined together are called compounds. For example, water. Water is a mixture of hydrogen and oxygen, H2O. As the same way, carbohydrates are the compound which is made up of carbon, hydrogen and oxygen. It is containing three elements, which is carbon, hydrogen and oxygen, and all the elements are different. That's why carbohydrate is a compound. Another question, how do we get this carbohydrate? How these carbohydrates are formed? ये carbohydrate बनते कैसे हैं? So carbohydrates are formed in plants during photosynthesis. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जब उन्हें अपना फूड प्रिपेयर करना होता है यूजिंग सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड रॉ मटेरियल, एयर ऑल्सो, कार्बन विच इज़, तो इस प्रोसेस में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो एज अ रिजल्ट वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट is we can say it is formed in glucose, sugar and starch. They are also known as typical carbohydrates. They are easily available. Sugar and starch are एक मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड. हमारे फूड में शुगर और स्टार्च जो है वो हमारे फूड का एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सो जनरली डेली लाइफ में जो हम फूड यूज़ करते हैं, अपने जो डाइट में जो हमारे फूड कंक्लूड होते हैं, वो फूड हमारे शुगर और स्टार्च जो है उनके मेजर पार्ट होते हैं. लाइक पोटैटो वी ईट एवरी डे, तो पोटैटो में स्टार्च होता है. वी ड्रिंक मिल्क विच कॉन्टेन शुगर and another processed foods such as bread, pizza, burger, jam, jellies, etc. They are rich in carbohydrate. It means they are rich in sugar and starch. Carbohydrates are the main and the cheapest source of energy for our body. As you know earlier that carbohydrate provide us energy, but how it we will discuss it about later. But carbohydrates are the main and the cheapest source of energy for our body. Therefore, carbohydrates are called energy giving foods. So, if the question is raising which component of food are called energy giving food, the answer is carbohydrates. There are three types of carbohydrate. Okay, carbohydrate के three types होते हैं, which is sugar, starch and cellulose. Carbohydrate के जो three types होते हैं, which is sugar, you can see here sugar, starch and cellulose. Very nice. शुगर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं. शुगर जो जनरली हम अपने घरों में ग्लूकोज यूज़ करते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेन शुगर और जेगरी गुड़. आप जानते हो सेन शुगर जो टेबल शुगर होता है, जो हम लोग चीनी में, दूध में इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में. स्टार्च इज़ फाउंड इन राइस, व्हीट, पोटैटोज, मैज एट्सेट्रा. ये जो सीरियल्स होते हैं इनमें स्टार्च होता है. अगर आपको स्टार्च देखना है कि ये कैसा होता है, तो इट इज़ अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस. जब आपके घर में चावल बनता होगा तो
चावल को जो वॉश करते हैं तो फर्स्ट वॉश में वाटर में कुछ वाइट पाउडर जैसा डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज स्टार्च ऑफ द राइस. When you cut the potato juice come out and after some time it dries and changes into powdery substance. It is the starch present in potatoes. Okay, and cellulose which is rough is dietary fiber. Here you can see it is help in digestion and prevent constipation. Okay, so let's study about each type of carbohydrates in detail. The first one is sugar. Sugar are the simple carbohydrates having sweet taste. They are soluble in water. The main source of sugar in our food are glucose and sugar, which is commonly called as sugar, milk, fruits such as banana, apple, grapes, etc. Table sugar is mostly obtained from sugarcane and sugar beet. Clear? मीन्स शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है और ये पानी में वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. और इनके जो मेन सोर्सेज हैं शुगर के हमारे फूड में विच इज़ ग्लूकोज हैं, सेन शुगर जो कि हमारे घरों में एज अ शुगर यूज़ होता है, मिल्क और जितने भी फ्रूट जो कि स्वीट टेस्ट करते हैं दे कॉन्टेन शुगर. ओके, एंड शुगर इज़ मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन जो कि गन्ना का या ईख बोलते हैं, एंड शुगर बीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च. Starch is a complex carbohydrate. Complex means it needs to digest. Starch is a tasteless, odorless, white substance. Okay, starch is a tasteless यानी कि starch का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता. It is odorless and it is a white substance. इसका जो कलर है दैट इज वाइट. स्टार्च इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. जब आप स्टार्च 1 स्पून ऑफ स्टार्च लेकर के वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कुछ समय बाद ये वाटर से सेपरेट होकर के नीचे कंटेनर के तली में बैठ जाएगा. सो इट इज़ इनसॉल्यूबल. और स्टार्च का बेस्ट एग्जांपल है कॉर्न स्टार्च जो कि हम लोग अपने घरों में मंचूरियन बनाने में इस्तेमाल करते हैं. Major sources of starch in our food are wheat, rice, maize and potatoes. Okay, हमारे फूड में जो मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च हैं हमारे फूड के दे आर wheat मीन्स गेहूँ, राइस, maize and potatoes. They all contain starch. Cellulose. What is cellulose? Cellulose is also complex carbohydrate. Okay, sugar are simple carbohydrate but starch are complex carbohydrate and cellulose are also complex carbohydrate. Cellulose is tasteless. Cellulose is also tasteless. It is also white powdery material and cellulose is present in plant cell wall. Cellulose, what is cellulose? Cellulose is also complex carbohydrate. It's a type of carbohydrate which is complex carbohydrate. सेल्यूलोज इज़ अ टेस्टलेस वाइट पाउडरी मटेरियल. सेल्यूलोज भी टेस्टलेस होता है और ये भी वाइट कलर का पाउडरी मटेरियल होता है. सेल्यूलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, वुड में प्रेजेंट होता है, कॉटन में प्रेजेंट होता है एट्सेट्रा. सो होप अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में. So here I have some fun fact for you. Let's discuss about it. Glucose directly enters the blood stream and produces energy through respiration immediately. Therefore it is acts as a source of instant energy. इट मीन्स कि ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में वर्क करता है और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंटर हो जाता है. और व्हेन वी रिस्पायर यानी कि जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होकर के हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, सो वी कैन से द ग्लूकोज इज़ द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. आवर next fun fact is here for you which is related to cellulose. And here cellulose is not digested by human body. This is because human body does not have an enzyme, it breaks it down. Cellulose is not digested by human body. This is because human body does not have an enzyme to break it down. cellulose को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए नेसेसरी एंजाइम होता है
वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है. As a result, it is extracted out as such. Therefore, it does not provide any energy to our body. The grazing animals such as cows, buffaloes and termites can digest cellulose. हमारे बॉडी में जो सेल्यूलोज है ये अनडाइजेस्टेड ही रहता है और ये अनडाइजेस्टेड ही एक्सक्रिएट हो जाता है. दैट्स वाई हमें इससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू ऑब्टेन नहीं होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है. लेकिन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी और इसके जो एंजाइम होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स में होते हैं, जो एनिमल्स घास खाते हैं, एंड दे कैन ईजिली डाइजेस्ट इट. एक्सेस इनटेक, द सेकेंड fun fact for you, excess intake of sugar and starch, which is carbohydrate in short we can say, can result into a disease called diabetes. Okay, सो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसकी वजह से डिजीज़ भी होता है. कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते, मतलब किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है. तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वहाँ हमें डायबिटीज़ का खतरा बना रहेगा. इट्स अ डिज़ीज़. डायबिटीज़ से सफ़र करने वाले बहुत से लोग हैं इंडिया में. हर तीसरे घर में एक पर्सन डायबिटिक पर्सन है. तो ऐसे लोगों को जनरली कार्बोहाइड्रेट या शुगर अवॉइड करना चाहिए अपने फूड में. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हाउ डू वी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट? कौन, अभी तो आपने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. बट आपने देखा शुगर इज़ अ सिंपल स्टार्च, sugar is a simple carbohydrate, and starch and cellulose is complex carbohydrate. So they are need to be digested, in which you have seen that cellulose को digest नहीं कर सकती human body. cellulose को digest नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्च एंड शुगर्स गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. जब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है दैट टाइम स्टार्च और शुगर जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज इज देन ऑब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड वेसल्स इसे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह रन करने का. तो इस तरह से जो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. देन जब हम रिस्पिरेशन करते हैं, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. इस समय जो ये ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बॉडी के वेरियस पार्ट में, अलग अलग पार्ट में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसका रिजल्ट जो है वाटर और एनर्जी, इसके एज अ रिजल्ट वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज. ठीक है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें वाटर और एनर्जी मिल जाती है हमारे बॉडी को. So here you can see a chemical formula is also given here, and an activity is given here for testing the starch. If possible you can do this activity, you can perform this activity at your home, and tell me the result if there are starch present in your food or not. In our next video we will discuss about fat. So तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, घर पे रहें और सुरक्षित रहें. थैंक यू.